RBI Grade B is one of the most prestigious exams of a country. And when RBI is recruiting people to work in RBI, I am sure that there is a lot of thought process behind that recruitment के pattern कैसा होना चाहिए, कैसे questions डालने चाहिए, क्या difficulty level होना चाहिए. So they must be giving a lot of thought process behind that. But when I talk to the aspirants, and as a mentor also having experience in this field for the past 5 to 6 years, I feel that there are certain lacunas or gaps which if taken care, this can become a near perfect exam pattern. And the idea is not to criticize RBI here. मैं जानता हूं कि वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ये चीजें डिसाइड कर रहे हैं. They have lots of experience, हमारे से बहुत ज्यादा knowledge है, and they know what they are doing. But we can always discuss the problems and give them as a feedback. बाकी उनके ऊपर है वो उसको consider करेंगे या नहीं करेंगे. तो इस वीडियो में I would be discussing with you 5 things or 5 reasons due to which I feel that no, the pattern is hurting lot of aspirants or at least many deserving aspirants. तो वो 5 चीजें क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहली चीज है मेरे हिसाब से इज अबाउट द नो फिक्स्ड recruitment date. No fixed recruitment date. Now, see, we have seen there are a lot of other bodies in India which are recruiting people. UPSC है या फिर IIT, नीट के एग्जाम्स हैं. These exams are very professionally planned. हमें पहले ही पता होता है एग्जाम कब होने वाला है, किस डेट पे होने वाला है. But when it comes to RBI, I see a lot of randomness. And it's not that this is a random exam जो 2 साल 3 साल के बाद होता है. Then we can understand कि dates नहीं हमें पता हो सकती. If you see, RBI has been recruiting people for the past so many years. मतलब 2013 से तो मैं ही ऑब्जर्व कर रहा हूं. सिर्फ एक ईयर, कोविड ईयर को छोड़कर, it has recruited people every year. Now, what is the problem in giving the date, a fixed date to the students कि हम हर साल इस महीने में रिक्रूटमेंट करेंगे. And if you do not want to do recruitment that year, you can always tell 2-3 months before that this year we are not coming out with recruitment for whatever reasons they have. But अगले साल फिर उसी डेट पे रिक्रूटमेंट होना चाहिए so that people can plan. देखिए एक स्टूडेंट को कितने ज्यादा एग्जाम देने होते हैं and if they don't know कि RBI कब आने वाला है और RBI के साथ फिर सेबी नाबार्ड भी है, उनका भी नहीं पता है कब आने वाले हैं. I mean it's very difficult to plan. And among all this what starts is a frustration. ठीक है, ये वीडियो आ रहा है, वो वीडियो आ रहा है, इस दिन नोटिफिकेशन आएगा, इस दिन फेज 1 होगा, इस दिन फेज 2 होगा, वो होता नहीं है, फिर और डिले हो जाता है. That all leads to a lot of speculations, and when that speculations are not fulfilled, that actually leads to frustration on the student side. तो ये बहुत मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, और इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट तो सफर कर ही रहा है. कहीं ना कहीं RBI is also suffering because I know the main objective of this whole recruitment process is to recruit the best talent in the country. And I'm telling you, the best people are actually dying to join RBI, but उनमें से काफी लोग they are not able to give their best or they are not considering this option क्योंकि एक fixed date नहीं है. And when you don't have fixed date, हम जितना भी कह लें, पहले पढ़ लो, पहले सिलेबस पूरा कर लो, but it's very difficult to execute when you don't have a clear date in your mind. तो मेरे हिसाब से इस चीज में इंप्रूवमेंट हो सकती है यार, ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. The second point is tough nature of फेज 1. तो यहां पे फेज 1 में मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा क्वांट एंड रीजनिंग की. ठीक है, देखो आप क्वांट रीजनिंग को टफ बनाओ, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. टफ होना चाहिए, बहुत इजी नहीं होना चाहिए, बट अब इतना भी टफ ना बनाओ यार कि लोगों का सेल्फ स्टीम ही खत्म हो जाए. अब इतना टफ बना दिया जा रहा है दैट आई फील दैट इट्स मोर बेस्ड ऑन लक रेदर देन ऑन टैलेंट. कि जिसने शायद तुक्के से सही क्वेश्चन उठा लिए उसका ज्यादा चांस बन जाएगा और वो क्लियर कर जाएगा. और पेपर लिटरली इतना टफ है. आई सी लॉट ऑफ गुड एस्पिरेंट्स आर नॉट एबल टू स्कोर 4 मार्क्स क्योंकि सिलेक्टिविटी एक ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गया है एग्जाम में कि कौन से क्वेश्चंस आप उठा रहे हो, वो आपके लक पे है, और वो सही उठा लिए तो शायद आप वो 4-5 नंबर ले लेंगे. तो कहीं ना कहीं बहुत टफ बना दिया है. और देखिए बहुत सारी अलग रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं, यूपीएससी भी है, वो भी सीसेट बहुत टफ सेट करती है, बट उन्होंने फिर क्वालिफाइंग बनाया है. NABARD has already made quant reasoning qualifying. ठीक है, तो अगर इस एंगल से देखें, मे बी दे कैन ऑल्सो मेक इट क्वालिफाइंग. उसको टफ रखो बट क्वालिफाइंग मतलब के एक मतलब उसको मेरिट सेक्शन में मत लो क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो हर्ट करता है. और अगर आप उसको क्वालिफाइंग नहीं रखना चाहते तो थोड़ा सा लेवल इजी कर दो. वी आर नॉट सेइंग कि आप इसको बिल्कुल ही इजी बना दो. आई नो RBI wants to check filtering skills, decision making skills. They also want to check that how do students handle pressure. but वो थोड़ा कम
टफ सेट करके भी चीजें चेक की जा सकती हैं। इतना टफ सेट करना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग सफर करते हैं, आई नो सीरियसली, मतलब पर्सनली मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत की, अच्छे हैं, क्वांट में भी अच्छे हैं, बट समहाउ वो इतना टफ पेपर है कि वो लक बेस्ड हो रहा है तो क्रैक नहीं हो रहा है। तीसरी चीज जो मैं यहां पे मुझे लगता है कि शायद थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए, दैट इज अबाउट द फैक्चुअल नेचर ऑफ द एग्जाम। फेज 1 में चलो ठीक है, जनरल अवेयरनेस इज ऑलवेज काइंड ऑफ फैक्चुअल, बट अगर मैं फेज 2 की बात करूं यहां पे, ईएसआई पेपर, it has lot of questions based on schemes. I know you must set it because people need to know about the initiatives that are running in the country. But उन schemes में आप इतनी factual information क्यों पूछ रहे हो? आजकल हर डेटा गूगल पे अवेलेबल है। आप कोई भी रिपोर्ट खोलकर, कोई भी स्कीम खोलकर, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट द रीसेंट डेटा। द आइडिया शुड नॉट बी टू चेक कि कितना आप याद रख पा रहे हैं। द आइडिया शुड बी टू एक्चुअली फाइंड आउट कि आप कितना उस चीज को एनालिटिकली समझ पा रहे हैं, उस चीज के कंसेप्ट में घुस पा रहे हैं, बिकॉज दैट इज वेयर यू विल बी वर्किंग, नो, दैट इज द एरिया वेयर यू विल बी वर्किंग एट आरबीआई। तो यहां पे मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए यार। मतलब बाकी सारे पेपर बहुत सही सेट हो रहे हैं, ईएसआई में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। एंड द फोर्थ पॉइंट विच आई फील इज अबाउट द डिस्क्रिप्टिव इंटरफेस। आई एम नॉट सेइंग कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर बेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑनलाइन इटसेल्फ, द वे दे आर कंडक्टिंग नाउ, बिकॉज एग्जाम इज ऑनलाइन। But the improvement really, what I see should be improved is that if you see the descriptive interface there, you are given a very small window to write your answer. I mean, this is not something you will be working in the real time. We are all used to typing our answers on our desktop or laptops where we get a normal screen, right? Why in the exam you are giving such a short screen that now the moment you write 5-10 lines, it starts scrolling. और इससे भी बड़ी दिक्कत है द कीबोर्ड्स देयर। आई हैव लिसन फ्रॉम लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के कीबोर्ड बहुत ही पुराने होते हैं, डब्बे जैसे कीबोर्ड हैं जिन पे काम करना बहुत मुश्किल लगता है। आई मीन द वर्ल्ड इज चेंजिंग यार, यू प्लीज चेंज योर कीबोर्ड्स इन योर एग्जाम सेंटर्स। और कई बार इसमें जो कीज होती हैं, एक आधी की चल नहीं रही होती है। यू जस्ट इमेजिन आपका एक आर या ए नहीं चल रहा है, इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू टाइप योर पेपर यार। एवरी लाइन वुड हैव अ मिस्टेक बिकॉज हर लाइन में ए आर जैसे वर्ड आएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इट्स ऑल अबाउट एम्पैथाइजिंग विद द स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर कंसर्न्स। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि बहुत कम होती होंगी, ऐसा नहीं है कि सबके साथ है, बट एक भी डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ हो गई, एक भी डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ, ही इज गोइंग टू लूज आउट ऑन हिज सीट, which is not a justice done for that student. And the fifth point which I feel should be taken care is about the interview process. Now I understand that interview process is always subjective, और वो आरबीआई में भी सब्जेक्टिव है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको चेंज कीजिए, इसके मार्क्स कम कीजिए, बिल्कुल सही है, आप मार्क्स इतने रखिए। सब्जेक्टिविटी हमेशा रहेगी इंटरव्यू पैनल में, एंड आई नो दैट people who are sitting there are very much informed, very much knowledgeable. They would always be taking the right decision while giving the marks. हम इसकी बात कर ही नहीं रहे हैं कि कुछ बायसनेस है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। I am pretty sure that the perfect is process. The process is perfect. All I want, मुझे जो थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट लगता है कि कर देना चाहिए कि अब काफी लोगों को इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलते हैं, 15, 12, 17 ऐसे लोग हैं, एंड दे आर ऑलवेज अंडर परसेप्शन के पता नहीं उनके साथ कुछ गलत हो गया है, बायस था इंटरव्यू पैनल, जबकि ऐसा नहीं होता है। सो आई फील दैट अमंग ऑल दिस सब्जेक्टिविटी देयर नीड्स टू बी नो सर्टन ऑब्जेक्टिविटी, कि आप बस इतना बता दीजिए कि ये हमारे 5 पैरामीटर्स हैं और दीज आर आर 10 पैरामीटर्स ऑन विच वी विल बी इवैल्यूएटिंग। दिस मच मार्क्स वी विल बी गिविंग टू द वर्कएक्स, if at all they give, I don't know, I'm just contemplating. This much marks we will give to your education or your 10th marks, this much marks we will give to your knowledge, this much marks we will give to your personality, all that, whatever your parameters are. And I know this cannot be perfectly like now binary 0 or 1 nahi ho sakta hai interview process, but if you can at least define the parameters, I think people will be able to understand that why they are getting less marks in the interview. वो सब्जेक्टिविटी इतनी नहीं होनी चाहिए कि इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर ही शक होने लग जाए। सो दीज आर दी 5 थिंग्स व्हिच आई फील कहीं ना कहीं चीजों पे इंप्रूवमेंट हो सकती है। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, आई वुड लव टू हियर योर व्यूज ऑन दीज 5 पॉइंट्स which you can share in the comment section. If you have something to add also to this, you can always share in the comment section. I mean, you never know if somebody is watching there and they might take it to the higher authorities. तो जो भी आपका फीडबैक है
इन 5 पॉइंट्स पे इनके अलावा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। तो ये कुछ चीजें हैं, आई थिंक एक बहुत अच्छी बॉडी है। और मैं सबसे अच्छी चीज इस रिक्रूटमेंट बॉडी के बारे में बोलना चाहूंगा, प्रोसेस बहुत स्मूथ है। I've seen a lot of other exams, papers are getting leaked, dates are being pushed. RBI में though the notification date is not fixed, but once the notification is announced now, I think you will also vouch for that the recruitment process is kind of very, very smooth. तो इस चीज के लिए आरबीआई आई थिंक दे डिजर्व अ क्लैप यार। मतलब कभी भी मैंने नहीं देखा कि पेपर लीक हो गया या एग्जाम बहुत डिले हो गया नोटिफिकेशन के बाद। चीजें बहुत स्मूथ चलती हैं। इवन द इंटरव्यू प्रोसेस, द रिजल्ट अनाउंसमेंट इज ऑल्सो वेरी प्रॉम्प्ट आफ्टर द इंटरव्यू प्रोसेस इज ओवर। सो कुडोस टू देम फॉर दैट। Baki, this is the RBI guidebook which we have now curated, which contains all the information for RBI. RBI में क्या departments हैं, promotions हैं, hierarchy है, salary, enhanced salary. And if you want to crack this exam, you will get 3 things which are very important for you in this guidebook. One is previous year papers for RBI Grade B, both for phase 1 and phase 2. The detailed syllabus, the one which is not even given in the notification, and the detailed book list and resources, websites. Everything is part of this guidebook, and this is absolutely free. You can download this by going to the description of this video. There is a link. Click on that link, download this, and read it by yourself. I'm sure you will get the kick that you would have always required to crack this exam. And these are about our courses. We have a gold pack and a silver pack. Gold pack is a combination of phase 1, phase 2, and interview. So this is kind of complete solution to your preparation. Silver pack is mainly for phase 2 and interview, but we are also covering the GA for phase 1 here because phase 1, phase 2 GA is kind of integrated. And I know there must be a trust build up before you will like to become part of EduTab community. So there is a link in the description of this video where you can download a sample material और उसको देखो, पढ़ो, and judge by yourself about the quality and the comprehensiveness also. Have a nice day. Bye bye. Love you all.